Good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. I'm audible to everyone. Good afternoon, ma'am. I'm audible to everyone clearly. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Should we begin? Yeah, wait for few minutes for others to join. Good. So, were we in our last class? Anyone who was there? Am I audible, Yes, ma'am. students? Yes. So, were we in our last class? Anyone? No one will reply. Now, there was a topic which was left out was CSR. What is CSR? Anyone? Ma'am, company social responsibility Company social responsibility or corporate. or corporate social responsibility. What does it mean? What does CSR means? So basically, what I know, the company has to spend some amount, some percentage of their profit in fulfilling the social responsibility towards the society, educating the poor or something like that, charity work kind of thing. Okay. So basically CSR is what we get from society, we give to society. Yes? Yes. So in CSR we have few dimension. What are those dimension that are visible on my screen? Anyone? Economic, legal, ethical, voluntary and philanthropic. Yes? These are visible to everyone or not? Yes, Is ma'am. my It's acceptable. yes? So what does economic responsibilities mean? Responsibility to earn profit for owners. Yes, ऑब्वियसली आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रॉफिट अर्निंग इज द बेसिक टारगेट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. Yes or no? Anyone? Yes or no? Am I audible or not? Yes, ma'am.
Yes, na. So Yes, replies ma'am. should be there. Yeah. So earning, economic earning is the basic motive of each and every organization. Then what is legal? Responsible to comply with laws. What does this mean? जो भी rules and regulation है, either they are political, they are technological, legal environment, political and legal environment, everything should be followed. And ethical, doing what is right, just and fair. सबको पता है what is ethical. Ethics is what we get from our society, from our parents. Yes. So, doing what Yes, is ma'am. right, just and fair, and voluntary and philanthropic. What does mean? Promoting human welfare and goodwill. Being good is contributing to community or quality of life. CSR, कुछ percentage of CSR है that every organization has to do. Can you tell me what is that percentage? Ma'am, is it like 2%? Yeah, it is 2%. Yes. Now, social responsibility of business. This is the framework which is showing to shareholders, to employees, to customers, to suppliers, to creditors, to government, and to community. This is the framework which shows the social responsibility of any businesses towards all these. Okay, not only for single thing. Earning profit is the basic motive of every business, but the people involved within that business, it is the responsibility of the business to take care of all. Okay, with this we wind up our block 1. Now we will continue with our block 2. Can anyone tell me uh, what is Indian economy? Yes, what is Indian economy? Can anyone? Ma'am, is it like the financial growth and the change in the market? Yeah, the financial growth and the change in Change in the the market. market. Yes, so let's start with the story of our Indian economy. Uh, from like from here, let's continue. The Indian economy, we are the third largest in the purchasing power parity. What does this mean? Anyone? जो हमारी इंडियन कंज्यूमर्स की जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर पैरिटी मीन्स द परचेजिंग पावर, इट वी आर ऑन द थर्ड पोजीशन. ओके, just after US and China. Now, pre-colonial, colonial and post-colonial. What was the pre-colonial? We were in the Indus Valley civilization in 1700 AD. Obviously, we were very developed, as our history shows, and we were doing good. Good trade relations were there. But as soon as East India Company came, that was the colonial time. Yes, my screen is visible. Yes, sir. It's Yeah, there were two-way depletion of resources. The British would buy raw material from India at cheaper rates, and finished goods were sold at higher rates than normal price to Indian market. So we were during these phase, India share the world income this leap from 22.3% to 38% in 1952. Now, what happened after independence? After independence, after colonial rule from 1947, we started rebuilding of our economy. Rebuilding in the sense, हम independence के बाद भी 20 years तक, it was a time we used to import food grains. ठीक है, we were importing food grains. So the first 5-year plan which was introduced, specially focused on agriculture. We were importing food grains from US. Now it was basically focused on agriculture. क्यों? क्योंकि हम फूड ग्रेन इंपोर्ट कर रहे थे, हम जो कि एग्रीकल्चर में
हम ग्रोइंग हैं, एग्रीकल्चर, वी ग्रो more and more, we do farming, we are nowadays we export, but at that time we were unable to feed our peoples. For that purpose only हमें import करना पड़ रहा था. With yes or no, do relate with me, otherwise मुझे लगता है कि my voice is not there and I'm just speaking out. Yes, ma'am. Yes. Yes, in ma'am. in online class there should be some yes no, so that पता चले कि you are there. ठीक है. Now, what happened? सेकेंड 5 ईयर प्लान, एवरी वन नोज 5 ईयर प्लान इसीलिए आया था कि हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट शुरू हुआ. सेकेंड ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि वी वेंट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो दिस ऑल 5 ईयर प्लान, these all 5 year, how many 5 year plans are there? Anyone? 12, ma'am. Yes, these all 5 year plans helped our economy to grow. Okay, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, and there was a time of license raj which came into being. Can anyone tell me what are those license raj? What is license raj? किसी ने सुना है ये terminology? Are you familiar with this word license raj? No, ma'am. License raj, it came into being where industries were divided into public and private sector. ठीक है. और लाइसेंस राज वाज द, इट इज जस्ट लाइक अ टर्मिनोलॉजी कि हम लाइसेंस देना शुरू करें. वी स्टार्टेड गिविंग लाइसेंस. सो इसी टाइम में हम ये लाइसेंस राज का जो प्लान था, लाइसेंस राज प्लान केम इनटू बीइंग. वी स्टार्टेड गिविंग लाइसेंस एंड सेक्टर्स वर डिवाइडेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट एंड समझ में नहीं आ रहा, License एंड प्राइवेट सेक्टर. private. ओके. सो हम लोग जो 1964 के पहले, द वॉर वी हैड विद चाइना, देयर वाज अ वॉर विद चाइना बिफोर 1964 when Lal Bahadur Shastri came to become the who was he? Anyone? On that day everyone was responsive. What happened today? Students. PM, ma'am. Yes, yeah, good. PM. Lal Bahadur Shastri ji was the PM. When he became the PM in 1964, before that we had war with China, and China came to know our economic weakness. What was our economic weakness? Our economic weakness was that we were not able to feed our people. Feed means, what does feeding means? Ma'am, like we were, importing the grains, wheat. Yeah, importing the grains. We were not able to feed our people. So he worked on it. Lal Bahadur Shastri ji worked on it for, जिससे कि वो ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशंस के टर्म्स सुने होंगे आप लोगों ने, ये रिवॉल्यूशंस आए. ही वर्कड ऑन इट. ओके. एंड बैंक का नेशनलाइजेशन जो हुआ, इट केम इनटू बीइंग इन 1969. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक. पहले बैंक वर नॉट नेशनलाइज्ड. ओके. Okay, ma'am. Yeah. So in 1983, the first real car that Maruti rolled out into the market, and Air Deccan has decreased their flight rates so that people could travel. These were the revolutions that came into India during this period. And IT sector, which is a boom nowadays, that all was also introduced during that time. And 1991 में we faced a crisis. Everyone knows in 1991 we came to face crisis. ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इकोनॉमी की बातें क्यों कर रहे हैं? इज इकोनॉमी रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट? Yes, ma'am. Yes.
So Yes, ma'am. yes, so in 1991 we came to face crisis. Yes or no? We sold out 20 tons of gold were sold to investment bank UBS, okay, in 1991. And few months later, on 30, after 2 months, on 30 May 1991, we sold out 20 tons of gold so that we could have flow of credit into the market to investment bank UBS. And after 2 months, 3 times of gold to Bank of England and Bank of Japan, 3 times of that gold, that is about $400 million were sold out to Bank of England and Bank of Japan, so that हम अपना क्या सही कर सकें, Flow. कैश फ्लो, क्रेडिट फ्लो. Credit. यस. सो बात अलग है कि दिसंबर 1991 में हमने सारा गोल्ड रीपरचेज कर लिया जो भी हमने दिया था. So, from 21st June 1991, the reform, that is LPG. What is LPG reform? Anyone? Liberalization, privatization, and globalization. LPG reform came into being on 21 June 1991. आफ्टर दैट हमें ऐसी कोई ना दिक्कत हुई और ना ऐसी कोई ज़रूरत हुई. बाकी ट्रेड्स हुए, बट we don't came to face, it was the last time we took favor from IMF and another related sources. Okay, so this was the story of the Indian economy till 1991. Got it or not? Yes, ma'am. Yes. So Yes, now, ma'am. what are the sector of Indian economy? Primary, secondary, tertiary, and other sector. In other sector, we have organized, unorganized, public, and private. Now, what is primary sector? The economic activity depend mainly on natural resources, agriculture and agriculture related activities, forestry and fishing, mining and extraction of oil and gas in the primary sector. Secondary sector involve manufacturing, the industrial production of physical goods. Now, what about tertiary sector? It involves intangible goods like services, attention, advice, like what our BPO and KPO do. Yes, Hmm? consultancy, telephony, and IT. These were under Territory which sector. sector? Yes. Now, external trade and investment. What is external trade? Exchange of capital, goods, and services across international borders or territory. So, in most country, it represents significant share of gross domestic product. Now, what is GDP? Anyone? What is GDP? What is gross domestic product? सबने सुना होगा ये टर्म. Yes, ma'am. अपनी जीडीपी को कितना करना है हमें? 5 trillion. 5 8%. ट्रिलियन. हाँ, और यूपी की जीडीपी को? 1 trillion. सो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. व्हाट डज इट मीन? नाउ आई विल टेल यू व्हाट डज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन. ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम. देयर इज टाटा विच इज वर्किंग इन इंडिया. ये हमारी डोमेस्टिक कंपनी है. यस और नो? Yes, ma'am. यस. और एलजी लेते हैं. एलजी हमारी डोमेस्टिक है कि इंटरनेशनल है? एनीवन? Ma'am, कोई और? international. हाँ, It's from South Korea. हाँ, it's from South Korea. So LG. Okay, now we have Tata, we have LG. So I'm reading out with an example if you people are able to understand.
सो क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? जो भी इसके 4 फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज द पॉलिटिकल बाउंड्री. First is the political boundary. Don't concentrate on the presentation right now. Just listen to me. 4 factors of GDP are there. First one is political boundary. Second is 1 year. And the third is product and services. And the fourth is the last cost or the price of the product. These are the 4 factors on which GDP is decided of any country. Mhm. Ankita, let's discuss on the issue at the last. Any query? So these 4 factors are important for calculating the GDP. GDP. अब हम बात करते हैं political boundary की. तो political boundary, what do you mean by that? Anyone who could tell me what does political boundary mean? Mm, There are two terms. One is geographical boundary, one is political boundary. Geographical boundary क्या होती है? हमारी इंडिया की जो बाउंड्रीज है. Yes, we mm, have boundaries ना, कि after that हम उसके बाद जब ट्रेड करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? वो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है. हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं. समझ में आ रहा है या नहीं? yes, देयर ma'am. इज नो येस और नो. ज्योग्राफिकल बाउंड्री और Yes, ma'am. पॉलिटिकल बाउंड्री का डिफरेंस ये होता है कि जो बाउंड्री, दोज बाउंड्री विच आर लाइंड आउट, दैट आर ज्योग्राफिकल बाउंड्री. पॉलिटिकल बाउंड्री क्या होती है कि हम 2 ओशियंस है, मान लो हमारे पास बे ऑफ बंगाल है और दूसरा कौन सा ओशियन है? Indian Ocean. इंडियन ओशियन. इंडियन ओशियन में अगर कोई एक्टिविटी होती है या कोई बिजनेस होता है, कुछ भी होता है, तो वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है. जैसे कि हमारे यहाँ से फ्लाई करके मान लो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, बाउंड्री तो उसने क्रॉस कर दी ज्योग्राफिकल. Mm-hmm. यस, बट देन ऑल्सो इट इज इन आवर पॉलिटिकल बाउंड्री बिकॉज इट्स सर्विंग इंडिया ओनली. ठीक है, इंडिया को ही सर्व कर रहा है ना. वो फ्लाई करके गया ऑस्ट्रेलिया अगर, तो भी कस्टमर्स को लेके. यस और नो? So, ma'am, political will be a kind of an international. पॉलिटिकल बाउंड्री का ये सेंस है कि पॉलिटिकल बाउंड्री जो भी वर्क होता है जिससे कि हमें अर्निंग होती है, वी अर्न. Okay. ठीक है, दैट इज अंडर पॉलिटिकल बाउंड्री. ओके, सो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. टाटा इज देयर एंड एलजी इज देयर. सो टाटा इज एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड एलजी है जो कि एक फॉरेन की कंपनी है जो एफडीआई के थ्रू इंडिया में काम कर रही है. ठीक है, टाटा भी कुछ अर्न कर रहा है. मान लो टाटा इज अर्निंग 100 रुपीज. एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट यू कुड ऑल अंडरस्टैंड. ओके, एंड एलजी इज अर्निंग 50 रुपीज. Mm-hmm. yes or no? yes तो बोलो. so Yes. Okay. Ma'am, yes. and there is, जो हमारे, मान लो वी कुड टेक एनी पर्सन, हमारे लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, कोई किसी कंट्री में, कोई ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है. just let take an example of Ram. He's working in Australia and he's earning 10 rupees. Ram is earning in Australia and earning 10 rupees, but he won't be counted in our GDP. But Tata and LG are working in our political boundary. They are earning here only, so they will be counted in our GDP. तो हमारी GDP क्या हो जाएगी? अर्निंग ऑफ टाटा प्लस अर्निंग ऑफ एलजी, दैट इज 100 प्लस 50 इक्वल टू 150. तो जीडीपी उस ईयर में उन्होंने 100 रुपीज अर्न किया और 50 रुपीज अर्न किया, तो जीडीपी हो जाएगी 150. ओके, So, ma'am, is it like if we say it's the amount of export revenue or something like that? एक्सपोर्ट जो भी अर्निंग, बेटा देखो, अगर कोई एलजी काम कर रहा है यहाँ पे आके या कोई भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट काम कर रहा है, तो
अब हमें अर्निंग कैसे हो रही है, वो काम तो यहाँ कर रहा है बट जो भी प्रॉफिट शेयर है वो कंट्री में जा रहा है, हाँ ठीक है, बट वो हमें टैक्स दे रहा है, हाँ ही इज गिविंग अस टैक्स, सो वो हाँ। टैक्स हमारी अर्निंग हो गई, ओके। ठीक सो है। सो बेसिकली मैम अगर बोले कि जैसे कोई भी यहाँ के जो काम कर रहा है जितना टैक्स हमारे या कंट्री में है, सो जो वो जो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री में काम कर रहा है और 1 ईयर का रेशियो है, जो भी अर्निंग है उसका रेशियो 1 ईयर है, उसमें हम्म चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विसेज हो, और उसकी कॉस्ट जो एमआरपी पे वो सोल्ड आउट हो रहा है, हम्म द लास्ट कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट इज द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री, दीज 4 फैक्टर्स इंक्लूड द जीडीपी ऑफ द कंट्री, जीडीपी हम इन्हीं 4 फैक्टर्स से कैलकुलेट करते हैं। तो मैम एक चीज बताइए, जैसे हाँ लाइक जो टैक्स पे करते हैं वो अगर कंपनी भी पे करती है और एम्प्लॉय भी पे करते हैं, हाँ, तो वो जीडीपी में दोनों टैक्स काउंट होते हैं कि सिर्फ कंपनी का ही टैक्स काउंट होगा? जो भी नहीं, सब काउंट होगा जीडीपी में, ओके। ठीक है। हाँ। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, दैट इज जीडीपी, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. यस, श्योर एवरीवन? यस मैंने मैम। पूरा एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाया है व्हाट इज जीडीपी। नाउ व्हाट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सुना है ये टर्म? Yes, ma'am. यस, व्हाट इज जीएनपी, एनीवन? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम काउंट करते हैं कि मैंने सिंपल एग्जांपल बताया टाटा का और एलजी का, टाटा इज वर्किंग इन इंडिया, हम ऐसे XYZ कितनी भी कंपनीज ले सकते हैं, जो भी पीपल वर्क कर रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं हमारी कंट्री में, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, ठीक है, वो वो कोई भी हो जो अर्न कर रहे हैं, और मैंने एक एग्जांपल दिया था कि राम इज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, या एनीवन हु इज वर्किंग इन यूएस, ठीक है। तो हमारा जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि हम जीडीपी लेते हैं, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स, इन ब्रैकेट वी राइट एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो जीडीपी मेरे एग्जाम्पल में कितना था, 150 था, हमने कैलकुलेट किया था। हाँ मैम। हाँ, जीडीपी हमने कैलकुलेट कितना किया था, 150। अब मैंने बताया कि राम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है एंड ही इज अर्निंग 10 रुपीज ईयरली, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, वो 10 रुपीज ईयरली अर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम, इट्स जीडीपी माइनस, तो जीडीपी हमारी 150 है, 150 प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स हो गई हमारी राम की इनकम 10 माइनस वाई, वाई क्या है हमारी जो एलजी से इनकम हो रही थी। जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पेपर सो दैट यू कुड एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो 150 इज आवर जीडीपी और एक्स हम कह रहे हैं कि राम इज अर्निंग 10 रुपीज, ठीक है। तो 10 रुपीज वो माइनस 50 दैट LG इज अर्निंग, तो 150 माइनस 40 इक्वल टू 110, तो आवर GDP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विल बी 110, वो हमेशा जीडीपी से बिलो होगा, क्योंकि जीडीपी में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी काउंट करते हैं, जीएनपी में हम उनको काउंट नहीं करते हैं। समझ में आया, नहीं आया? यस मैम, आ गया। Yes, ma'am. यस, एनीवन एल्स नहीं आया हो समझ में जैसे? सो मैम जैसे लाइक जीएनपी का जो फॉर्मूला आपने बताया है, उसमें मनी फ्लोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड मनी फ्लोइंग टू फॉरेन कंट्रीज फ्रॉम या फॉरेन, राइट? फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू इंडिया, जो हमारे पीपल हैं जो वहां पे वर्क कर रहे हैं, मनी फ्लोइंग फ्रॉम देम टू आवर कंट्री, तो जो मैम भी हमारा, हाँ, जीएनपी इज आवर नेशनल इनकम।
सो मैम ठीक है, उसमें ज्योग्राफिकल, हाँ बताओ। नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए फिर मैं पूछ रहा ठीक है, सो जीएनपी इज दैट. नाउ another terminology is there, that is NDP, that is net domestic product. Now what is this? What is NDP? मान लो LG is working और टाटा इज वर्किंग. मान लो कोई, ये लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, या इन्होंने पूरे साल में 10 प्रोडक्ट बनाया या 20 प्रोडक्ट्स बनाया. वी टेक एन एग्जांपल, 20 प्रोडक्ट्स बनाया पूरे साल में टाटा ने. 20 प्रोडक्ट्स में से हो सकता है कि 10 प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो गए हो, खराब बन गए हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई हो. हूँ. ठीक है, और एलजी ने मान लो 10 प्रोडक्ट्स बनाए, तो उन 10 प्रोडक्ट्स में से 2 प्रोडक्ट्स खराब हो गए हो. ठीक है, तो हमारा जो वो होगा नेट, what we are talking about, NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हमारा क्या होगा? जीडीपी माइनस डी. डी इज द डेप्रिसिएशन. ओके, तो मान लो 10 प्रोडक्ट टाटा का खराब हुआ और 2 प्रोडक्ट एलजी का खराब हुआ, तो हमारा एनडीपी क्या होगा? एनडीपी होगा हमारा 150, दैट इज जीडीपी. 150 जीडीपी हमने कैलकुलेट की है. जीडीपी में से -12, दैट इज द डेप्रिसिएशन. 10 प्रोडक्ट्स टाटा के खराब हुए और 2 प्रोडक्ट्स. सो मैम जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी हाँ, कॉस्ट माइनस करते हैं. उनको हम माइनस करते हैं. ठीक है, ओके. और मैम So- मैम जैसे कई बार होता है, आई एम जस्ट सेइंग राइट, सो हाँ, कई बार होता है कि डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स को कम रेट में सेल आउट कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या होगा? वो ऐड हो जाएगा ना, मतलब जो प्रोडक्ट कॉस्ट तो है अगर वो सेल आउट हो गए तो उनको हम ऐड क्यों करेंगे नहीं मैम, नेट तो डोमेस्टिक मैम अगर प्रोडक्ट में? अगर मान लीजिए डिस्काउंटेड उसमें हुआ, जैसे 100 रुपीज का था, नाउ वो हाँ. डिफेक्टेड है, तो द कंपनी सोल्ड आउट एट 60 रुपीज, हम्म. राइट? सो हम हम्म. 40 रुपीज माइनस करेंगे ना. नहीं नहीं, अगर हमने उस प्रोडक्ट को सोल्ड आउट कर दिया तो हम उसको माइनस नहीं करेंगे, फिर हम उसको जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे. हमने जब सोल्ड आउट नहीं किया तो हम उसको डेप्रिसिएशन में माइनस कर रहे हैं. अच्छा, मतलब जो चीज अगर सेल आउट नहीं हो रही है, नहीं हुई है उसको हम वेस्ट माइनस है, कर रहे हैं. 100% वेस्ट है मतलब. और दूसरा जो टर्म होता है, द अदर टर्म इज नेट नेशनल प्रोडक्ट. वो क्या होता है? जैसे यहाँ पे क्या था कि टाटा के 10 प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हुए थे और एलजी के 2 प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे? जीएनपी हमारा कितना आया था? 110 आया था. तो 110 में से हम 10 माइनस करेंगे ना, वो 2 हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 2 तो वो एलजी का था, वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट में आएगा नहीं. तो 110 माइनस 10, 100 विल बी द एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट. समझ में आ गया चारों टर्म? एवरीवन Yes, ma'am. guess? So these are the basic 4 terms that are used in our Indian economy. ठीक है? Now, what is external trade? It is the exchange of capital, goods and services across international borders. GDP की बात की थी हमने यहाँ पे. Importance क्या है? Exchange of capital, goods, services. कुछ भी हम जो करते हैं, it represent a significant share of gross domestic product. अब समझ में आ गया सबको what is gross domestic product? So accordingly you can relate. How does it relates to GDP? Any issue? No, ma'am. ओके. नाउ इंडिया ट्रेड, No, ma'am. इंपोर्ट करते हैं, फ्रीली इंपोर्टेबल गुड्स होते हैं. इंपोर्टेड गुड्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी. फर्स्ट वन इज द फ्रीली इंपोर्टेबल आइटम्स. फॉर दोज आइटम नो इंपोर्ट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड. They can be freely imported by an individual or a firm. Then canalized item. These are imported only by public sector firms. For example, petroleum products fall under this category. Then prohibited items. Items such as unprocessed ivory, animal rennet, and tallow fat cannot be exported to India. हर कंट्री के प्रोहिबिटेड आइटम्स होते हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते. Yes?
Yes, ma'am. द टर्म आई वाज सेइंग कि वो जो हमें बूम आया था आईसीटी और बीपीओ का, दैट इज दैट। और फिर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं इनमें, Mm-hmm. इन नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। ऑब्वियसली हमारी कंट्री फर्स्ट सोर्स है फॉर बीपीओ, फर्स्ट चॉइस है फॉर बीपीओ। यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेशनल इनकम की बात मैंने कर दी थी, ग्रॉस नेशनल इनकम मैंने इसको समझा दिया था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सारी चीजों को हमने समझा दिया है। यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, नाउ व्हाट previous इज, slide. Previous slide. यस, Previous slides. Slide. हाँ, Indian Open again. इट इज अबाउट, इट इज अराउंड मैम आफ्टर ट्रिपल पी 20%। थोड़ा सा बताइए। हाँ, परचेजिंग पावर पैरिटी। पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी अभी हम बता रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। Now, what are the strength of Indian economy? It is well placed to benefit from globalization and outsourcing. Demographic of India is favorable. There is much of scope for increase in efficiency. Problem faced by Indian economy: inflation, poor educational standard, poor infrastructure, balance of payment deterioration. High inflation क्या होता है? High level of debt, large budget deficit, rigid labor laws. Inflation हिंदी में क्या मतलब होता है इन्फ्लेशन का? मुद्रास्फीति। और वैसा टर्म? महंगाई। महंगाई, यस। अ सिंपल टर्म इज कॉल्ड महंगाई। अब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन नाउ, वी विल डिस्कस ओवर इन्फ्लेशन। तो बैंक का जो बेसिक डायग्राम है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, एवरीवन इज फेमिलियर विद दैट? Yes, ma'am. यस, एवरीवन इज फेमिलियर। नाउ हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे, पहले हम रेपो रेट की बात से शुरू करते हैं। व्हाट इज रेपो रेट? एनीवन, व्हाट इज रेपो रेट? कुछ आइडिया है रेपो रेट क्या होता है? Ma'am, is it something fixed by the RBI? या देखो, रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई है, उसके नीचे सारे बैंक्स वर्क कर रहे हैं। हाँ। यस। सो रेपो रेट, आरबीआई जब इन बैंक्स को लोन देता है फॉर 2 to 14 days, Okay. वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेट पे लोन देता है, Mm-hmm. दैट इज रेपो रेट। Okay. ओके। Yes, ma'am. नाउ रेपो रेट इज चेंज, मतलब मिनिमम 4 times इन अ ईयर। वो क्यों चेंज होता है वो भी बताएंगे हम अभी। सो पहला टर्म है रेपो रेट। समझ में आया सबको? सिंपल लैंग्वेज में मैं सारी चीजों को समझा रही हूँ। व्हाट इज रेपो रेट? जब आरबीआई से, लेट मी शेयर दिस, नाउ दिख रहा है मेरा स्क्रीन? एवरीवन विजिबल? माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. Yes, जब आरबीआई इन बैंक्स को लोन देता है फॉर 2 to 14 days, दैट इज रेपो रेट। रेपो रेट जो होता है वो एमएसएफ और बैंक रेट से कम होता है, ठीक है। जी अब मैम। नाउ व्हाट इज एमएसएफ? एमएसएफ इज, एनीवन, कोई बता सकता है व्हाट इज एमएसएफ? सुना है कभी ये टर्म? जब हम बैंक से इमरजेंसी फंड लेते हैं फॉर 1 day, ठीक है, हम नहीं, बैंक्स लेते हैं जब बैंक से इमरजेंसी फंड, वो होता है एमएसएफ।
marginal standing facility. MSF is marginal standing facility. बैंक बोरो करता है फंड फ्रॉम आरबीआई फ्रॉम आरबीआई. इमरजेंसी फंडिंग होती है और ओनली फॉर 1 डे होती है ये, नॉट 2 to 14 days. ठीक है, सिर्फ जैसे आज लिया हमने और कल हमने वापस कर दिया. इट्स एन इमरजेंसी फंडिंग और इसका जो रेट होता है 4.6%. अभी एग्जैक्ट क्या है इस समय? एनीवन जस्ट टेल मी व्हाट इज द एग्जैक्ट MSF राइट नाउ? सर्च इट आउट एंड टेल मी. No one. मैम 4.65 दिखा रहा है. नहीं, दिखा रहा है? लास्ट ईयर का है. हाँ, मैम चेक कर रहा हूँ. देखो 6.50 is the repo rate and 6.75. 6.75 है. 6.75. Okay, now it's 6.75 and 6.50 is the repo rate. Repo rate हमेशा इससे कम होता है. It's obvious क्योंकि कोई फंड हम एक नाइट के लिए ले रहे हैं और कोई फंड हम 2 to 14 days के लिए ले रहे हैं, तो वो हमेशा कम होगा. इमरजेंसी हेल्प आप किसी से लेते हो तो वो आपको ज्यादा चार्ज करता है ना. यस मैम. ठीक है, और जितना MSF होता है उतना ही बैंक रेट होता है. ये मोर देन हम 14 डेज के लिए लेते हैं. ओके, फ्रॉम RBI सेम होता है ये 6.75. ठीक है, Yes, ma'am. वी टेक इट फॉर मोर देन 14 डेज. ये जनरल टर्मिनोलॉजीज है, समझ में आ रही है सबको? मैम बैंक जी, रेट मैम. फिर से बता दीजिए. हाँ, मैम बैंक बैंक रेट जो होता है ये हम मोर देन 14 डेज के लिए लेते हैं. देखो, इमरजेंसी फंड 1 डे के लिए MSF, रेपो रेट जो हम फंड लेते हैं फॉर 2 to 14 डेज, और बैंक रेट मोर देन 14 डेज. ओके. ठीक है, टू हाँ. 30 डेज. दैट इज बैंक रेट. नाउ व्हाट इज बेस रेट? RBI जब अपने बैंक्स को दे रहा है तो वो ये तीनों चीज चार्ज कर रहा है. रेपो रेट, MSF, बैंक रेट. बेस रेट जो होता है वो जब बैंक अपने इंडिविजुअल कस्टमर को लोन देता है तो वो बेस रेट पे देता है. बट बेस रेट इज नॉट फॉर एवरीवन. बेस रेट इज ओनली फॉर फेवरेट कस्टमर. फेवरेट कस्टमर का क्या मतलब होता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेवरेट कस्टमर? Ma'am, maybe whose account is who's a long existing customer, or whose deposit Yeah, is whose deposits are more and more. more and Those more. are the favorite customers. Okay, who do big huge transaction Hmm. from the bank. So वो उनको बेस रेट पे देता है और बेस रेट हमेशा PLR से कम होता है. What is PLR? PLR is the personalized lending rate. PLR पर्सनलाइज्ड लेंडिंग रेट होता है. जो बैंक इंडिविजुअल कस्टमर को कभी भी लोन देता है तो वो PLR पे देता है. फिर रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं हम. रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट तो हुआ कि RBI ने हमसे लिया, मतलब हमसे मतलब बैंकों से लिया, उन्होंने जिन बैंक को लोन दिया उनसे लिया. रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट जब जैसे मान लो सेकेंड सैटरडे एंड संडे बैंक इज ऑफ. Hmm. यस, एंड Yes, फोर्थ ma'am. सैटरडे एंड संडे बैंक इज ऑफ. तो 2 दिन बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना है. Hmm. तो जो बैंक के पास फंड है वो फंड वो RBI को देते हैं फॉर 2 days, फॉर 1 day, इट डिपेंड्स. ठीक है,
आरबीआई उनको जो इंटरेस्ट देता है दैट इज रिवर्स रेपो रेट, दैट इज 3.75% इन करंट सिनेरियो। देखो वो दे रहा है तो मोर देन 6 पे दे रहा है, और खुद उनको दे रहे हैं तो वो जब इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इट इज गिविंग ऑन 3.75%। Now, what is CRR? CRR, that is cash reserve ratio. Banks जो है वो ऐसे ही तो काम नहीं करते हैं, उनको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई के पास रखना होता है, तो दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ओके, एंड देन we have SLR. What is SLR? It is statutory liquid ratio. हर आरबीआई के गाइडलाइंस में है कि हर बैंक को कुछ स्टैचुरी लिक्विड रेशियो अपने पास रखना होता है, क्योंकि देखो बैंक तो कस्टमर्स बेसिस पे काम करता है ना, हमने इन्वेस्ट किया, हमने लोन लिया, किसी ने फिक्स, भाई उनका अपना तो कुछ होता नहीं है ना। एनीवन? Yes, ma'am. यस। सो जो एसएलआर होता है, एसएलआर जो होता है, जो आरबीआई के पास डिपॉजिट्स रखते हैं बैंक, दैट इज एसएलआर। वो फिक्स्ड गाइडलाइन देते हैं कि इतना आपको अपने पास रिजर्व फंड रखना होगा। सो मैम ठीक है, वो बैंक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट के टाइम पे होता है या जब डिपॉजिट होता है? नहीं नहीं, इनिशियल सेटअप वो एक रूल में है बेटा, इट्स इन अ रूल बुक, आपको इतना इन्वेस्टमेंट रिजर्व करके रखना ही रखना है। ठीक है, हाँ, तो दैट इज एसएलआर। अब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। आरबीआई ने बैंक को लोन दिया, कितने पे दिया? 6.50 पे। ठीक है, फिर बैंक ने हमें कितने पे दिया? बैंक इंडिविजुअल कस्टमर को पीएल कितने पे देता है? मैम अराउंड 7 to 9 समथिंग। 7 to 9, 12 to 13, डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ लोन। डिपेंड करता है बैंक पे किसका क्या है, तो उसने हमें उतने पे दिया। तो देखो जब कैश का फ्लो मार्केट में होगा, जब लिक्विडिटी का फ्लो मार्केट में होगा, आपका जब कोई भी हो, जब सैलरी आती है तो उस समय आदमी एक्सपेंसेस बहुत करता है। यस, और जब मंथ एंड आता है जी। तो क्या करता है? Credit. हाँ, क्रेडिट। जब मंथ एंड आता है तो अपनी डिमांड्स को भी, कोई डिमांड्स ऐसी होती है जिसको वो मीट नहीं भी करता है ना, कि चलो नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, करता है ना। तो Yes, जब ma'am. जब लिक्विडिटी का फ्लो, जब कैश का फ्लो आपके पास ज्यादा होगा तो आप क्या करोगे? आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करोगे मार्केट में। जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे मतलब डिमांड हाई है, डिमांड हाई है तो कॉस्ट हाई हो जाएगी प्रोडक्ट की, कॉस्ट हाई हो जाएगी ना। देखो जैसे कोई भी वैसा सीजन मान लो, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सीजन एंड ऑन सीजन। जब शादी वेडिंग्स के सीजन्स होते हैं तो ये जो वो होता है, जैसे ये डीजे हैं या कोई भी हैं, इनके चार्जेस हाई होते हैं, और जब ऑफ सीजन में इनके पास जाओ तो इनके चार्जेस लो होते हैं। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. सिमिलरली जब आपके पास लिक्विड में फंड होगा, लिक्विडिटी होगी आपके पास ज्यादा, तो आप खर्च करोगे तो डिमांड बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो अपने आप इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, और जब डिमांड डिक्रीज होगी तो प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी डिफ्लेशन। बट मैम जो मार्केट का इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें हाँ, तो उसमें तो लाइक मे बी आई एम रॉन्ग, तो वो कंटिन्यूअसली वो तो बढ़ता ही रहता है ना, तो वो तो बढ़ता डिमांड। इसलिए रहता है ना। देखो आरबीआई हमेशा कहता है कि कम से कम लोन दो, और बैंक्स क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोन देते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 10,000 है और आपको लोन मिल गया 20,000 का, तो आप 30,000 खर्च कर दिए। और उस 20,000 का पे तो करना ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि पे नहीं करना है। बैंक को आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही है ना, फिक्स अमाउंट टाइम पीरियड में पे करना है। तो जितना ज्यादा लिक्विडिटी का फ्लो मार्केट में होगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा, और जितना कम फ्लो होगा उतना ही
इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं करेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी। महंगाई तभी बढ़ेगी जब लिक्विडिटी का फ्लो ज़्यादा होगा। आपके पॉकेट में पैसे होंगे, आपके अकाउंट में कैश होगा, तो आप ऑब्वियसली एक्सपेंसेस इंकर करोगे। जब अकाउंट में कैश लिमिटेड है तो आपके एक्सपेंसेस भी लिमिटेड होंगे। ओके, ओके, गॉट इट? यस मैम। समझ Yes, में आ गया ma'am. इन्फ्लेशन? मैम तो So, ये बताइए, जैसे कई बैंक्स होते हैं, इंटरनेशनल बैंक्स होते हाँ, हैं, और हाँ, उस केस में इज इट लाइक वो अगर फॉरेन बैंक से भी अपना ले सकते हैं ना हाँ, लोन, हाँ। तो उस केस में उस वो फैक्टर कैसे इम्पैक्ट करेगा? क्या चीज़? जैसे आरबीआई की तरह कई हाँ, बैंक्स लाइक इंटरनेशनल बैंक से लोन ले लिया बैंकों हाँ, ने, हाँ। ठीक है, अब उनको वो परसेंटेज रिटर्न करना पड़ेगा, हुँ। है ना? किसी बैंक ने किसी फॉरेन बैंक से लोन लिया, हम्म लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी क्या करेगा? वो मार्केट में फ्लो करेगा। हम्म बैंक पैसा लेके अपने पास तो कभी नहीं रखता है ना, वो ठीक है। स्टोर तो करना नहीं है। हम्म, तो ठीक वो है मैम। मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा लोन लेंगे उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके? हाँ सो विद दिस समझ में आ गए सारे मैम टॉपिक? मैम क्या आरबीआई क्या सिडबी को भी बैंक सॉरी लोन देता है क्या? RBI is the ruling bank of all the bank, whether they are commercialized, they are not commercialized बैंक। कौन कौन से बैंक आते हैं RBI के अंदर? टेल मी। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट? कोऑपरेटिव सब आते हैं ना। यस हाँ मैम, मैम। सारे आएंगे उसके। RBI देता है, सिडबी को भी लोन देता है, जितने भी बैंक्स आते हैं उसके अंदर वो सबको देता है। देखो, और इन्फ्लेशन का एक और है जीडीपी का एक और पार्ट है एमएसएमईज। जितनी ज्यादा एमएसएमईज उतनी है अच्छी जीडीपी। जितनी रनिंग प्रॉपर रनिंग एमएसएमईज और जितना एमएसएमईज हैम्पर होंगी उतना ही जीडीपी हैम्पर होगा। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया ऑल दीज टॉपिक्स? हाँ मैम, वो यस ट्रिपल मैम। सी वाला आपने बोला था, बाद में बताएंगी। कौन सा? ट्रिपल सी करके एक स्लाइड में था ना, पावर पे समथिंग लाइक। अच्छा, परचेजिंग पावर परचेज पावर पैरिटी। पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? परचेजिंग पावर क्या होती है? Like the amount which we can spend in purchasing this stuff, right? हम्म? जो purchasing, like how much we can purchase it, हाउ मच? how much amount we can spend on purchasing the stuff, right? परचेजिंग पावर इज करेंसीज में, अच्छा, हाँ, डिफरेंशिएशन इन प्राइस लेवल्स बिटवीन कंट्री। ठीक है? अच्छा, हाँ। बट मैम एक चीज बताइए, जैसे मैंने कहीं बहुत पहले हाँ। कहीं पढ़ा था कि इनिशियली जब ये लाइक करेंसी रेट वगैरह डिसाइड होते थे, लाइक हम्म। ₹1 to $80, ये आपके गोल्ड रिजर्व पे होते थे। हम्म। बट क्या करंट भी वही है कि या करंटली हम लोग किसी और फैक्टर्स पे? परचेजिंग देखो, परचेजिंग पावर पैरिटी का पहले एक पार्ट में वो कर दूं तब। यूएस की करेंसी और इंडिया की करेंसी में कितना डिफरेंस है? हम अराउंड 82। 82। तो अगर कोई यूएस में अर्न कर रहा है तो उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी, और जो इंडियन करेंसीज में अर्न कर रहा है उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी? मैम यूएस वाले की ज्यादा होगी। ज़्यादा होगी। हाँ। तो यही है परचेजिंग पावर पैरिटी। अच्छा। कमोडिटी एक्स, किसी भी एक एलिमेंट को दो करेंसीज में आप किस उस पे, परचेजिंग पावर पैरिटी इक्वल टू परचेज ऑफ कमोडिटी एक्स इन करेंसी 1 डिवाइडेड बाय परचेज ऑफ कमोडिटी एक्स इन करेंसी 2। ओके। ठीक है? हम्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? मैम मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ये करेंसी का डिफरेंस जो तय होता है, लाइक वन वन $1 इज टू 80 to 82%, 82 रुपीज के हम्म। बराबर होगा। हम्म। ये पहले तो गोल्ड, आपके पास कितना गोल्ड रिजर्व है उस पे हम्म। होता था। हम्म। अभी क्या अभी भी उस पे है,
या अब या अदर फैक्टर्स भी आ गए हैं? नहीं, वो फैक्टर तो है ही। हाँ, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट, ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी करेंसी के रेट को डिटरमाइन करते हैं। अच्छा। ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है, थैंक यू। चलो, थैंक यू फॉर नाउ। थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू।